can convert higher order differentials to algebraic equation in S domain. So इसी को तुम लोग बार बार अगर इसको फिर से अगर करोगे एफ डबल डैश टी को तुम लोग डिफरेंशिएट ये करोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो तुम्हें इस तरह कुछ फंक्शन दिखेगा, ठीक है। तो अगर मान लो अगर डिफरेंशिएशन अगर n बार हुआ, लेट द एफ टी इज डिफरेंशिएटेड n टाइम्स, then after transforming into S domain you will get s raised to n fs minus then the exponential of s will be decreasing, okay, and we will get and then we will be writing f0 f dash 0 and similarly to f n minus 1 0. So try to remember this formula, okay, it will be very helpful in the coming examples. देखो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने किया है इसी को हम लोग थोड़ा एक बार फिर से करेंगे तो हमें एक सीरीज जैसा दिखेगा। एफ डैश टी को देखो ये आया, फिर एफ डबल डैश टी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस तरह का फंक्शन बनेगा। उस तरह से एस क्यूब कर एफ ट्रिपल डैश को करोगे तो कुछ बनेगा। तो इस तरह से एक सीरीज बनेगी, तो हम इसको जनरलाइज करते हैं इस फॉर्मूला से, ओके। सो नेक्स्ट देखो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। तो लेट्स से यू आर हैविंग अ फंक्शन एफ टी एंड you are given its Fourier Laplace transform, okay, fs is given and you have to find the value of ft at t is equal to 0. So you have to find the value, initial value, okay, initial value of the function in the time domain, and you are given only the function in s domain, okay. So what will you do? So here it is given limit t tending to 0 positive ft is equal to limit s tending infinity sfs. So अगर मेरे को t टेंडिंग टू 0 पे निकालना है तो हम यहाँ पे s टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे और एस एफ एस को का फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एफ टी है, द फंक्शन एफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश टी शुड बी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल। सो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल होना चाहिए, मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में देखें तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था जीरो से इन्फिनिटी, राइट, एफ टी रेस टू माइनस एस टी डी टी का। तो अगर हमने इंटीग्रेशन करने के बाद अगर कुछ ऐसा फंक्शन आता है, जैसे अगर मान लो एफ टी का हम लोग 1/t अगर ले लेते हैं तो उस केस में उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमसे नहीं निकल पाएगा। तो वो कुछ इन्फिनिटी या कुछ अजीब सा कुछ वैल्यू आएगा, वो निकल नहीं सकता, ओके। सो इन दैट केस हम लोग उस केस में ये वाला थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जिस एफ टी और एफ डैश टी, तो फंक्शन एफ टी एंड एफ डैश टी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिसका कर सकते हैं उसी का एफ रहेगा। तो उसका एफ अगर रहेगा तो अगर तुम्हें तो सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि अगर तुम्हें इनिशियल वैल्यू निकालना है इन टाइम डोमेन तो बेसिकली तुम्हारा जो एस डोमेन जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एस इज द फंक्शन इन एस डोमेन, ओके। सो you have to multiply it with s and then you have to put the limit s tending infinity, okay, and you will get the value of initial value of the function in time domain. So this theorem is useful to find the initial condition of ft in time domain if fs is given, okay. So you don't have to find the inverse Laplace and then you have to find the ft at t equal to 0, okay. You can just put s tending to infinity and sfs and you will find the ft at t equal to 0. Similarly, we have final value theorem. So in this case, we have to put s tending to 0 in SFS, okay. So the function in this case also the function ft and f dash t should be Laplace transformable and limit SFS s tending to infinity so is exist. So this function should exist for all positive s, okay. So when we have to find ft at t tending to infinity, then we will just find limit s tending to 0 SFS. Like let's say you are solving an RC circuit, okay. So in RC circuit you can convert the circuit in S domain and then you can find the values of current I, and then to find the saturation current or the current which will visually final flowing through the circuit, you can just use this theorem limit s tending to 0 SFS. So you don't have to calculate those currents in the time domain, okay. समझ में आ रही है बात तुम लोग को? तो फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या है कि अगर हमें एफ टी का फाइनल वैल्यू निकालना है, किसी फंक्शन का फाइनल वैल्यू निकालना है टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, उस फंक्शन क्या अप्रोच करेगा, कौन सा वैल्यू को अप्रोच करेगा, और हमें एफ टी नहीं दिया हुआ, हमें एस डोमेन में उस फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ, एफ एस दिया हुआ, हम लोग एस एफ एस। कोई कुछ बोल रहा है? किसी को कोई डाउट है?
अगर किसी को डाउट हो तो डैड बोल देना, ठीक है, चैट बॉक्स में मत लिखना, डैड बोल देना तो मेरे को मैं बता दूंगा संग से। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? आसान सा चीज़ है इसमें, आज के वर्कशॉप में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट होने नहीं वाला, ठीक है, बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनिशियल केस में हम लोग एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे और फाइनल में एस टेंडिंग टू 0 रखेंगे बस। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि एप्लीकेशन, थोड़ा हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो मान लो ये रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक वी सोर्स अप्लाई किया है, तो एज डोमेन में क्या दिखेगा, तो एज डोमेन में सिंपली जो वी टी उसको हम लोग वी एस लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर जो है वो आर ही रहेगा, क्योंकि अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी टी जो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, वी एस से रिप्लेस कर देंगे, और आई टी को आई एस से रिप्लेस कर देंगे, और आई आर जो है वो आर ही रहेगा। ओके, 10 में ये इक्वेशन तो पता ही होगा सबको, वी टी इजिकल टू आई टी इंटू आर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये फंक्शन बनेगा। अगर वी टी इजिकल टू 5 कॉस ओमेगा टी हुआ, तो ये वाला फंक्शन हम लोग यूज करके 5 कॉस ओमेगा टी अगर हुआ, तो 5 तो कांस्टेंट है तो वो 5 ही रहेगा। कॉस ओमेगा टी का जगह ओमेगा का जगह यहाँ पर क्या, ओमेगा बाई स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर वी खाली वी टी बोल के अगर लिखा गया तो उनसे सिंपली वी एस लिख सकते हो, आई टी को आई एस लिख दो, कुछ है नहीं इसमें। देखो अब टाइम डोमेन में इंडक्टर सर्किट ये तुम देख रहे हो राइट, तो इंडक्टर सर्किट क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस वी एल टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, राइट। सो अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो हमें क्या होगा, वी एल टी क्या इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, वी एल एस में ट्रांसफर हो जाएगा। एल इज डिनोटिंग हियर द लैप ये इंडक्टर, ओके, एल। सो when we are doing the Laplace transform L dIL by dt, so L is a constant, so it will come out, okay. And what is the Laplace transform di by dt? That differentiation का Laplace transform क्या होगा, s il s minus il 0 minus। so इसमें क्या होगा, 0 माइनस तुम लोग 0 प्लस भी ले सकते हो, ठीक है, जस्ट 0 पे जो वैल्यू होगी उसको तुम ले सकते हो, एस आई एल एस माइनस आई एल 0 माइनस। तो ये जो डिफरेंशियल जो अपना फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको जब एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एस माइनस एल आई एल 0 माइनस। तो तुम लोग बेसिक से चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। वी जो होगा वो क्या बन जाएगा, तुम इसको ये जो वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर है तुम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो दो तरीके से, एक वोल्टेज के जरिए और एक करंट के जरिए। इन वोल्टेज के केस में क्या होगा, एक मान लो एक रजिस्टर एक कुछ है, एक जिसका इम्पिडेंस है एल एस है, क्या इम्पिडेंस एल एस, और एक वोल्टेज, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है एल आई जीरो यहाँ पे वो इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका जो साइन होगा वो देखना नेगेटिव, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो इसका हमने पोलैरिटी चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे उसका रिवर्स में होगा प्लस माइनस, ओके। Simply if we have to find ILS, that is the current through the inductor in S domain, then it will be equal to VLS by SL, where SL is the impedance plus IL 0 minus by S. So this in the circuit it will look like this, okay, it will look like this. So a current is flowing from I to V and we are having inductor in between L in time domain. So in S domain it will convert into this SL and here I naught by S, okay. सिमिलरली देखो यहाँ पे कैपेसिटर की बात करें हम तो आई टी क्या होता है, आई टी होता है सी डी वी बाई डी टी। आई होप ये सब तुम लोगों को पता होगा, यहाँ पे एल नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो हम लोग जब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आई टी से क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा, और डी वी बाई डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो थोड़ा पहले ही हमने देखा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो जो सी है वो कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर ले आएंगे, ठीक है। बाकी भीतर क्या लिख देंगे, एस वी सी एस दैट इज माइनस वी सी जीरो माइनस। तो वी सी जीरो माइनस जो इनिशियल वैल्यूज है। तो अगर ये अगर ये कैपेसिटर चार्ज नहीं है, इफ द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड or it is having no charge, then this will equal to 0 since q is equal to cv and v is equal to q by c. So if initial charge is 0, then this vc 0 minus will be 0, okay. Then ic is equal to cs vcs minus cvc 0 minus. So it represents that what is the initial value of the
charges in the capacitor. Okay, we can, from that we can find the VC0 minus. Okay, that is a initial voltage across the capacitor. We can find using if it is given in the question, we can find it. Okay, it can be directly mentioned in the question that VC0 minus is this, or is it's what I can say, it's the charge in the capacitor will be given. If it is not mentioned, then just assume that it is initially uncharged and the VC0 minus will be 0. So VCS is equal to ICS by SC plus VC0 minus by S. So we here also we can represent it in two ways. First, when we are representing it using current, then you can see that we are having two CS VC. So what we are doing, it is I is equal to V by R. You remember, right? So I is equal to V by R. Then R is equal to what? 1 by CS. So here we will not say it R. We will represent it using Z impedance. Okay. So impedance here is equal to 1 by SC. And here, see, since it is having a negative sign, so here the current will be opposite to the current flowing in the terminal. Okay. So this current will be opposite in direction. Okay. Since here is negative sign, and here we can also C plus VC 0 minus by S. So in this case, you can see that the voltage is plus. So we will be having same polarity in the voltage source. Okay. So in the numericals, while solving the circuits, if we are, it is depending on you. If you want to solve these using the current equation or the voltage equation, then you will use the respected circuit. Okay. If you want to use the current, then you can use this circuit, and you can just replace it by an impedance on and then source, current source here, and in voltage case you can represent it using this, an impedance and a voltage source. Basically at impedance and admittance. So impedance is denoted by ZS. ZS is equal to VS by IS. Okay, impedance of the circuit component series domain R. So in case of resistor, it is simply R. In case of inductor, it is SL, and it can, in case of capacitor, it is 1 by SC. Okay. So admittance is just opposite of impedance, and it is just reverse of this. So in case of R resistor, it is 1 by R. In case of inductor, it is 1 by SL. In case of capacitor, it is SC. And Y is equal to IS by VS. Just similar. किसी कोई डाउट है इसमें? एडमिनेंस जस्ट मे बी तुम लोगों ने शायद नहीं सुना हो, तो एडमिनेंस जस्ट इसका इम्पीडेंस का इनवर्स होता है और कुछ नहीं. देखो ये सर्किट है जिसको हम लोग नॉर्मल टाइम डोमेन का सॉल्व करना चाहे. हेलो हेलो कोई कुछ बोल रहा है क्या? देखो ये बेसिकली एक सर्किट है जो टाइम डोमेन में दिया हुआ है. ठीक है, 280 ओम है, 0.25 माइक्रोफैराड है इसका. ये सबको पता है ये सिंबल क्या होता है? देखो नॉर्मली अगर कोई सिंबल अगर स्क्वायर में अगर दिया हो तो समझ, ये देखो इसका मतलब क्या, करंट सोर्स है. ये अगर सर्कल में दिया हुआ है तो समझ लेना ये क्या है, यह है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. ओके, ये क्या है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. अगर कोई रोम्बस इस तरह का डायमंड शेप में अगर तुम्हें कुछ दे दिया है, जैसे ये करंट सोर्स है, सामने आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है, तो ये अगर डायमंड शेप में रहता है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस. ठीक है, ये डिपेंडेंट सोर्स का क्या मतलब है, इसका जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ दिस डिपेंडेंट सोर्स विल बी गिवन according to some other component in the circuit. Like here we are having a capacitor across which the voltage is V5. We are just represented using V5. So here the current will be equal to 3.25 into 10 raised to 3, 10 raised to minus 3 into this voltage. Okay. So basically dependent voltage is dependent sources are the sources in which the values are depending on the some other component of the circuit. Okay. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे IG का वैल्यू फिक्स होगा, और यहाँ पे जो ये जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू ये डिपेंड करेगा कि V5 का वैल्यू क्या है. अगर हम यहाँ पे 0.25 पे जगह 0.35 यूज कर लेंगे तो यहाँ पे V5 बदल जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसका वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग को बोला कि IG इज इक्वल टू 550 मिली एम्पीयर. तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो करंट है
वो t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वो करंट क्या होगा 5 कांस्टेंट रहेगा, मतलब ut का वैल्यू 1 होता है आफ्टर t greater than 0, so 5 into 1 is equal to 1, so the current is 0 for t less than 0 and it is equal to 5 for t greater than 0। तो हम लोग को यहाँ पे v नॉट निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे हम लोग को v नॉट निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको तो यहाँ पे हम लोग अगर यूज़ करेंगे नॉर्मल मेथड अगर हम यूज़ करेंगे इंडिजिनस मेथड, तो उसमें क्या होगा कि हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, कि यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारा इंडक्टर है। तो सिंपल हम लोग इक्वेशन तो उसमें हमें क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें उससे बचना है, तो हम क्या करेंगे इसे, हम इसे एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यू नो आई जी विल बी कनेक्टेड टू आई एस। सी यूटी यहाँ पे क्योंकि आई जी को 5 यूटी दिया हुआ है, तो यूटी का ट्रांसफॉर्म अगर तुम देखोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या होता है 1/s होता है, राइट। क्या होता है 1/s, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 5/s एंड सिंस इट इज मिली एम्पेयर, so it is divided by 1000, that is 0.005/s। R will be similar and the capacitor will be converted into 1/cs, and after solving 1/cs you will be getting 4 into 10⁶/s। So since I am not mentioning that what is the initial charge in the capacitor, then we will assume that the initial it is chargeless initially, that there is no charge on the capacitor, and so if we look here, then how can I represent it like this? Okay, so 1/sc and cb 0 minus. So since there is no current, so this will be open. Okay, v0 is equal to what, 0, so this source is 0. In this case also since the capacitor is uncharged initially, then v0 is what, 0. So these things will be, in this case it is short circuit and in this case it is open circuit. So we will just replace it by an impedance 1/sc, and putting the value of c, you will get this. Next dependent sources will remain same, and this 40 millihenry will replace into 0.04s. Okay, and then you can just solve the circuit. Basically I am not going to solve it here because it will take time, and I will just provide you the solution. You can first try to solve it by yourself. Okay, here it is not very difficult because you are just having impedance. Just in this branch we are having total impedance what, 280 plus 4 into 10⁶/s. Okay, in this branch it is having impedance 0.04s. so just assume it like it is a resistor which is having impedance this, like when you are solving for normal circuits using having only registers, तो उसमें तुम लोग क्या करते थे, जब नॉर्मल रजिस्टर्स रहता था तुम लोग रजिस्टर को ऐड कर देते थे सीरीज में। सिंपली बस वही समझ लो कि यहाँ पे इम्पीडेंस है Z1, यहाँ पे इम्पीडेंस है Z2, तो दोनों को ऐड कर दो, तो उस तरीके से तुम यहाँ पे वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन तुम लोग को शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ, उसको तुम लोग देख सकते हो। तो समझिए, अगर हम बात करके इतना देर में मैंने जो पढ़ाया अभी तक उसमें क्या क्या हुआ है, तो देखो मेन है 3-4 चीज मेन है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो उसको क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन होता है ft⁻⁻ का। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्या पता चला कि अगर हमें टाइम डोमेन में फंक्शन नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ एस डोमेन में फंक्शन अगर दिया हुआ है, हमें टाइम डोमेन में उसकी इनिशियल वैल्यू निकाल ली है, तो हम एस डोमेन में क्या करेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस कर देंगे। और हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है टाइम डोमेन में, तो हम एस डोमेन से कैसे निकालेंगे। देखो टाइम डोमेन अगर फंक्शन दिया हुआ है, टाइम डोमेन में अगर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो उसका फाइनल वैल्यू निकालना तो डिफिकल्ट नहीं होगा, बोलो हम लिमिट या फिर कोई भी अनदर प्रोसीजर यूज करके निकाल सकते हैं। टी का वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट करके। पर अगर मान लो हमें एज डोमेन में दिया हुआ उसका वैल्यू, तो एज डोमेन में अगर दिया हुआ है तो मुझे इनवर्स लैप्लास नहीं यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैंने इनवर्स लैप्लास पढ़ाया भी नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनवर्स लैप्लास हम लोग नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एस एफ एस पहले निकालेंगे, इसका लिमिट एस टेंडिंग टू 0 के एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उससे हमें टाइम डोमेन में इसकी फाइनल वैल्यू नहीं पता चल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया कि हम लोग वी आर एस को मतलब एस डोमेन में हम लोग कैसे लिखते हैं, वी आर इक्वल टू आई आर, जब हम लोग का सर्किट क्या हो, आर सर्किट हो, सिंपली रजिस्टर हो। अगर वहाँ पे मान लो अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एस डोमेन में कैसे लिखेंगे, एल एस आई एल माइनस एल आई एल 0 माइनस, और कैपेसिटर केस में एस सी वी सी एस माइनस सी वी 0 माइनस। तो सिंपली समझ लो कि तुम्हारा इनिशियल इंडक्टर केस में तुम्हें इनिशियल करंट निकालना है, और कैपेसिटर केस में तुम्हें इनिशियल वोल्टेज निकालना है कि अक्रॉस द कैपेसिटर, और कुछ नहीं निकालना होगा।
बाकी अगर हम बात करें रजिस्टर की, तो इस में रजिस्टर सेम रहता है। इंडक्टर की बात करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है ACL में, और कैपेसिटर की बात करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है 1/SC में। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? देखो ये एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म इतना था, अब हम लोग ओपैम्प की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये न्यूमेरिकल सब पहले ट्राई करेंगे, अगर किसी से हो पाया तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, बाकी नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। चलो तुम्हें ओपैम्प की तरफ शुरू करते हैं। तो ओपैम्प के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है क्या किसी ने अभी तक? तुम लोगों का कोर्स में हुआ है अभी तक ओपैम्प? हेलो बताओ भाई, हेलो, कोई सेकेंड ईयर वाले। किसने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कुछ भी सुना हो? चलो नहीं सुना तो अच्छा बात है, आज तुम लोग जान लो इसके बारे में कि असल में होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। सो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या, देखो। देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और इसका ओपैम्प भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, तो इट्स फंडामेंटली अ वोल्टेज एम्पलीफाइंग डिवाइस। So it is device which is used to amplify a voltage across the input terminals, designed to be used with external feedback component. So what is feedback we will be discussing after few slides, such as resistors. So the feedback will be given using the resistors, capacitors. Okay. So this feedback component determine the resulting function or operation. So why it is given the name operational? So basically, if we are using op amp with different in different mode, then it will act as different, it can have different operation. Okay, it can perform addition, subtraction, it can perform integration, it can perform differentiation. Okay, so that's why it is the name is given operational amplifier. Okay, amplifier means simply what it can amplify the voltage input, and operational just because it can operate, it can perform different functions like addition, inversion, means you will get positive value and you will get negative voltage, like that. Okay, that's why the name is operational. Next we can जब तुम लोग का लैब होगा तुम लोग देख सकोगे, तुम लोग को इस तरह से आईसी मिलेगी जिससे तुम्हें ब्रेड बोर्ड में लगा के तुम्हें देखना कि कैसे वो काम कर रहा है, कोई सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। तो ओपैम्प का जो ये आईसी है, ठीक है, जिसका नाम इस तरह का आईसी है 411। तो यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के देखो 8 पिन रहेंगे, ठीक है। तो कोई ये आईसी किसी ने कभी अभी तक देखा है? किसी का लैब हुआ है अभी तक? सेकेंड ईयर में से किसी का लैब हुआ अभी तक? किसी ने आईसी देखा अभी तक? हाँ भैया, आईसी देखा ना? आईसी में क्या होता है कि आईसी में नंबर ऑफ पिन्स ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड आर सेम। ओके, इफ यू आर हैविंग 4 पिन ऑन द लेफ्ट साइड देन यू विल हैविंग 4 पिन ऑन द राइट साइड। सो बेसिकली ये सिमेट्रिकल रहता है, और हमें पता है उसका नंबरिंग जो है इस तरह से 1 2 3 पर यहाँ पे नंबरिंग दी नहीं जाएगी। तुम्हें देखो ये एक छोटा सा सेमी सर्कुलर कुछ मिल दिखेगा इस तरह से, ये डिप्रेस्ड, मतलब यहाँ पे तुम्हें एक सेमी सर्कुलर पैच सा कुछ दिखेगा, तो तुम वहाँ उसका लेफ्ट साइड से तुम नंबरिंग शुरू करोगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे अगर तुम लोग आईसी देखे तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में 3 4 टर्मिनल, देखो यहाँ पे 8 टर्मिनल है, 8 टर्मिनल में से ये बैलेंस वाला 1 5 एंड 7, तो इन तीनों को कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? 2 3 4 6 एंड 7। सो 2 and 3 आर द इनपुट, ओके, नेगेटिव इनपुट एंड पॉजिटिव इनपुट। 7 and 4 आर द सप्लाई वोल्टेज, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज एंड नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, एंड 6 इज आउटपुट। सो बेसिकली क्या होगा कि मान लो तुमने कुछ वोल्टेज दिया, तो नॉर्मल जब तुम लोग रजिस्टर से कोई सर्किट बनाते हो या फिर कैपेसिटर से कोई सर्किट बनाते हो, उसमें वोल्टेज बढ़ जाता है क्या कभी? जो सोर्स वोल्टेज से तुम्हें ज्यादा वोल्टेज मिलता है क्या सर्किट में? कोई रेस्पॉन्स दो, एनीवन? Can you make a circuit using resistor or capacitor and inductor, and you can have a voltage more than the source voltage? Hello. So in generally ऐसा नहीं होता है, ठीक है। In general we can't have the voltage across any resistor which is having value greater than the source voltage.
बट तो यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है इन अनलेस एंड अनटिल हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल कुछ सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करें। सो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज दिया जाएगा जिसको हम लोग एम्पलीफाई करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा भी हम लोग कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। जैसे हम लोग जब हम लोग माइक्रोफोन का यूज़ कर रहे हैं राइट नाउ, माइक्रोफोन का जब हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैं भी अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे जो मेरा सिग्नल है वो ये इनपुट सिग्नल में जाएगा और ये एम्पलीफाई होकर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये V प्लस और V माइनस क्या है, ये लैपटॉप जो है ये प्रोवाइड करेगा ये सप्लाई वोल्टेज, ताकि ये जो इनपुट को एम्पलीफाई करने के लिए जो एक्सटर्नल जो वोल्टेज चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखो ओपैम्प का देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से हम लोग देख सकते हैं और इसका इंटरनल सर्किट कुछ इस प्रकार होता है। तो इंटरनल सर्किट अभी हम लोग नहीं जानेंगे, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द इंटरनल सर्किट ऑफ ओपैम्प, ओके, because it is a little bit difficult and first yearers may have difficulties to understand this. So let me try to tell you about the equivalent circuit. So basically देखो इसमें 3-4 चीजें याद रखनी है तुम्हें ओपैम्प में। 3-4 चीजें जो बेसिक्स है वो हमेशा याद रखना कि इसका जो इनपुट में जो इम्पीडेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। सो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, ओके। यहाँ से कोई भी करंट इनपुट टर्मिनल से कोई भी करंट यहाँ इस भीतर में नहीं जाएगा। इट विल नॉट बी एंटरिंग एनी करंट थ्रू दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। फर्स्ट थिंग इज नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल. Second thing is what? The voltage across these two terminal would be same. And how it would be, I will discuss in after few minutes. And so ये जो है ये V सप्लाई है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो ये क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। मान लो कुछ एक कुछ सर्किट, एक कुछ बॉक्स है जिसमें तुम्हारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे तुम्हारे पास सप्लाई में नेगेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पे तुम्हारा V आउट है। तुम यहाँ पे कुछ वैल्यू दोगे, कुछ सिग्नल दोगे, यहाँ पे वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब हम लोग इसको ओपैम्प को सॉल्व करेंगे, इस ओपैम्प सर्किट को जब हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को कुछ बेसिक्स याद रखना है। उसका रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगा, खाली तुम समझ लो कि ये यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दोनों में, द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नो करंट इज गोइंग टू एंटर थ्रू दिस नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। अगर यहाँ से कोई ब्रांच होता है उसमें करंट फ्लो हो सकता है, पर इस ओपैम्प के भीतर कोई करंट फिलहाल नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो बेसिकली हम लोग मान लेंगे जेड जो है वो इनफाइनाइट है। जेड क्या है? इनफाइनाइट है। अब वी आउट में हमें कुछ मिलेगा। वी आउट में क्या मिलेगा? देखो माइनस है V2 माइनस V1, तो वॉट एवर द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस वी विल बी गेटिंग इन द आउटपुट वोल्टेज। देखो आइडियल ओपन में क्या होगा? आइडियल ओपन में आर इन जो है इन्फिनिटी होता है, आई एन जो होता है जीरो होता है। आई एन क्या होता है? जीरो होता है। कोई भी करंट यहाँ पे इंटर नहीं करेगा। आइडियली हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसको हम लोग आइडियली सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि आइडियल मान के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वी एस है, यहाँ पे नेगेटिव वी एस है, यहाँ पे आर आउट है जीरो। ओपन लूप गेन, ओएल का मतलब क्या है? ओपन लूप। सो ओपन लूप ए का मतलब एम्पलीफिकेशन और गेन वैल्यू। तो गेन वैल्यू जो होता है वो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होता है। तो आइडियल ओपन के लिए इनपुट इम्पीडेंस जो है इनफाइनाइट है और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो जीरो है। सो द करंट इंटरिंग द इनपुट टर्मिनल इज जीरो। सो यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे अगर जैसे तुमने प्रीवियस में देखा था, यहाँ पे मान लो जेड अगर बहुत ज़्यादा करंट का वैल्यू कमते जाएगा। अगर हम जेड इन्फिनिटी कर देंगे तो आई इन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम आई इन क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। So basically when we are using an amplifier, so the input impedance should be infinite. So that's make it ideal, okay. So ideal op amp को हम लोग आइडियल एम्पलीफायर भी हम लोग बोल सकते हैं। so, इसका वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार है। हम लोग कुछ यहाँ पे देखो Vp माइनस वी एन, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो वोल्टेज है उसका जो डिफरेंस है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वी नोट वी आउटपुट भी बढ़ेगा। पर रिमेंबर दिस थिंग, वी output can never be greater than V saturated and it can never be less than minus V saturated, okay. So ये बात तुम लोग याद रखना। तुम लोग अगर मिड सेम में अगर ये क्वेश्चन आता है ओपैम्प से, अगर ओपैम्प तुम्हारा सिलेबस में है तो ये याद रखना कि अगर ये ट्रिकी क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं कि Vp माइनस वी ने कुछ वैल्यू दे दिया, एम्पलीफिकेशन का वैल्यू दे दिया, और अगर वो V नॉट का वैल्यू V सैचुरेशन से ज़्यादा आ रहा है तो समझ लेना वो V सैचुरेशन ज़्यादा नहीं होगा, वो वैल्यू V सैचुरेशन पे जाके सैचुरेट हो जाएगा, ओके। मान लेते हैं Vp माइनस वी एन जो सपोज ये 1 वोल्ट है, इसका एम्पलीफिकेशन जो है वो 100 है। अब V सैचुरेशन 15 है तो ये 1 है, एम्पलीफिकेशन 100 है, V सैचुरेशन 15 है।
तो अगर हम फॉर्मूला वाइज अगर हम जाए तो वी नॉट क्या होना चाहिए, ए इंटू वी पी माइनस वी एन, तो 100 इंटू 1 वोल्ट, तो वो 100 वोल्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे क्योंकि वी सैचुरेशन में 15 वोल्ट है, मतलब ये 15 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मेरा वैल्यू 15 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसका आंसर में क्या लिख देंगे, 15 वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, आई गेस ये सबको समझ में आ गया होगा। तो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है कि लीनियर रीजन में तो ये सिंपली एम्पलीफाई करेगा, और जैसे ही इसका वी आउट का वैल्यू वी सैचुरेशन ज़्यादा जाएगा तो वो सैचुरेट हो जाएगा, वो उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ये सबको समझ में आया। और ये जो स्लोप होता है बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है। गेन क्या होगा, वी नॉट बाई वी पी माइनस वी एन, सिंपली यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो ज़्यादा होता है। देखो, तो हम लोग यहाँ पे फीडबैक की बात करते हैं। तो मान लो यहाँ पे कुछ हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, उसको हमने कुछ एम्पलीफाई किया, हमने कुछ आउटपुट दिया, फिर हम उस आउटपुट से कुछ एक पाथ, रिटर्न पाथ यहाँ पे ऐड कर देते हैं जिसका फीडबैक फैक्टर है एच, मैंने एच टाइम्स ये इसका जो भी वैल्यू, मान लो ये 5 है, इसका वैल्यू 1/2 है, तो ये 5 का हाफ पोर्शन इधर भेज देगा। 5 ये तो पूरा जाहिर है, इसका हाफ टाइम्स इधर भी आके ऐड हो जाएगा, या फिर प्लस होगा माइनस होगा जो भी होगा। तो मान लेते हैं ये इसका फॉरवर्ड गेन कितना है जी, इसका फीडबैक फैक्टर गेन कितना है एच। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे कितना आएगा सी एच, यहाँ पे कितना आएगा सी एच। और ई जो है इन दोनों का समेशन, यहाँ पे क्रॉस का मतलब यहाँ पे समर का बात करता है। ठीक है, मैं ये दोनों को सम कर देगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे जो सिग्नल होगा दोनों को यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे ई में भेजेगा। ओके, ये सबको समझ में। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली देखें तो सी क्या होगा, सी जो होगा वो जी इंटू ई होगा, मतलब यहाँ पे जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके हमने यहाँ बार भेज दिया। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या है, जी है। इसको ऐसा करंट मत समझना कि यहाँ से करंट कुछ जा रहा है, यहाँ पे ब्रांच हो गया तो वो करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, वो उस तरह से मत समझना इसको। तो मान लो यहाँ पे जैसे हम लोग पॉइंट, जहाँ ये क्या करते हैं, ये खाली एम्पलीफाई कर देते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे एम्पलीफाई कर देगा। तो यहाँ पे मान लो अगर टू है, यहाँ पे 4 है, तो 2 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, जी हो गया, राइट। उसके बाद क्या हम लोग ई निकालेंगे, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो सिग्नल यहाँ पे आ रही है इसका एच फैक्टर, इसका एच टाइम होगा, और यहाँ पे आर ऐड हो जाएगा, तो आर प्लस एच इंटू सी। तो सी यहाँ पे आई, एच से मल्टीप्लाई हुई तो सी एच बनी, यहाँ पे गई, यहाँ पे मान लो अगर प्लस हो रहा है, जैसे सपोज यहाँ पे प्लस हो रहा है मान लिया हमने, तो आर प्लस सी एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर प्लस सी एच। तो सी की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, सी इंटू जी, ई के वैल्यू ई विल बी रिप्लेस बाय आर प्लस सी एच। यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू जी आर प्लस जी एच सी। अगर हम इस टर्म को इधर ले आते हैं तो सी इंटू हो जाएगा 1 माइनस एच जी से, इज इक्वल टू जी आर हो जाएगा। तो सी बाई आर क्या निकलेगा, जी अपॉन 1 माइनस एच जी। सी बाई आर क्या निकलेगा, जी अपॉन 1 माइनस एच जी। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि अगर मान लो तुमने कुछ फीडबैक भेजा, यहाँ से आउटपुट से कुछ फीडबैक दिया, यहाँ पे तुमने माइनस, अगर तुमने यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो ये माइनस होगा, माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस होगा। ये फॉर्मूला याद रखना, जी अपन 1 माइनस एच जी, ये काम आएगा तुम्हारा अगर फ्यूचर में। सो देखो, अब फीडबैक की जरूरत क्या है। नॉर्मली जो गेन होता है ओपेम का, ये बहुत ही हाई ऑर्डर का होता है। ठीक है, 10:6। तो अगर मान लो तुम्हारा वी सैचुरेशन मान लो कितना होगा, 5 वोल्ट या 15 वोल्ट होगा, तो तुम्हारा जो वी इनपुट जो है वो तुम 15 माइक्रो वोल्ट तक ही यूज कर पाओगे। अगर तुम्हारा वी सैचुरेशन 50 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, और तुम्हारा गेन का ऑर्डर है 10:6, तो तुम जानते हो वी आउट इज इक्वल टू क्या हो, वी आउट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट डिफरेंस, दैट इज वी इन। वी इन मान लेते हैं कुछ है इनपुट, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू ए इंटू वी इन। तो ए का वैल्यू अगर 10:6 होगा, इसका मतलब क्या है कि वी आउट अगर 15 वोल्ट है तो वी इन कितना होना चाहिए, 15 माइक्रो वोल्ट। सो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे जल्दी, क्योंकि हम लोग का इनपुट वोल्टेज है वो कितना होगा, मिली में रहता है। मिली क्या होता है, मिली या वोल्टेज में रहता है। ठीक है, मिली वोल्ट में रहेगा। तो माइक्रो वोल्ट में जनरली रहता है, उतना कम वैल्यू नहीं रहता है। जनरली जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो हम लोग मिली वोल्ट रीजन में ऑपरेट करते हैं, ये जहाँ पे हम लोग एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हम लोग मिली वोल्ट में देंगे तो वो सैचुरेट हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि मिली वोल्ट, मान लो हम लोग मैंने दिया 1 मिली वोल्ट। सो 1 मिली वोल्ट जब ये 10:6 फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा, वो बन जाएगा 1000 वोल्ट बन जाएगा, क्योंकि वी सैचुरेशन कितना है, 15 वोल्ट है। सो वी कैन नॉट यूज ओपैम इन द रेंज इन विच वी नीड टू ऑपरेट इट। ओके, सो हमें इसका माइक्रो वोल्ट में ऑपरेट करना पड़ेगा, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फीडबैक का यूज करेंगे. सो वी नीड ओपन टू ऑपरेट इन लीनियर रीजन फॉर एम्पलीफिकेशन. तो एम्पलीफिकेशन के लिए वो लीनियर रीजन में एक्ट करना चाहिए, जैसे को यहाँ पे. अब इस रीजन में हमें चाहिए ये से यूज करना. इस रीजन में अगर हमें चाहिए तो हमें जो वी आउटपुट जो है, वी आउटपुट जब वी सैचुरेशन से कम होना चाहिए, राइट. सबको आवाज आ रही है ना? हेलो. हाँ भी आ रही है. हाँ, यहाँ तक जो पढ़ाया सब समझ में आया अभी तक? हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, कोई नहीं. तो यहाँ जब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो गेन है वो 10:6 है. तो हमें क्या होना, अगर हमें आउटपुट वी सैचुरेशन अगर मान लो 15 वोल्ट अगर दिया या फिर कुछ भी वोल्टेज में अगर रेंज में अगर है, तो हमें जो इनपुट वोल्टेज जो है वो हमें माइक्रो वोल्ट में ऑपरेट करना पड़ेगा, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है. तो हम गेन का यूज़ करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फीडबैक का यूज़ करेंगे, ठीक है. तो जैसे हम दोनों देख रहे हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव, अगर मान लो ये माइनस हो रहा होता है, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे आर प्लस एच सी की जगह आर माइनस एच सी अगर हो रहा होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जी अपन 1 प्लस एच जी लिखते हैं, राइट. तो जी अपन 1 प्लस एच जी रखते, तो 1 प्लस एच जी जब 1 से बड़ा है, तो ये जो जो टोटल जो गेन है वो जी से छोटा हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे फीडबैक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, गेन को हम लोग रिड्यूस कर देंगे. सो वी रिड्यूस द गेन बाय अप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक. ओके, रिमेंबर दिस टर्म नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे गेन जो है वो कम जा रहा है. नेगेटिव में यहाँ पे माइनस होगा, जो इनपुट के साथ ये वैल्यू माइनस होगा. तो नेगेटिव जब होगा तो ये साइन प्लस होगा, तो हमारा जो गेन का वैल्यू है वो कम जाएगा. गेन का वैल्यू हम लोग रिड्यूस कर देंगे. सो वी रिड्यूस द गेन बाय अप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक. और पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर हम लोग एम्पलीफायर का यूज कर रहे हैं सैचुरेशन रीजन में, मतलब हम लोग यूज करना चाह रहे हैं सैचुरेशन रीजन में, जैसे कि मान लो ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या, 1 माइनस एच जी, तो ऑब्वियसली इट इज लेस देन 1, राइट. ये वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी हो जाएगी. अगर मान लो एच जी का वैल्यू 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी. तो ये जो होल टर्म है ये जी से बड़ी हो जाएगी. तो हमारा गेन जो है इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक वो बढ़ जाता है. पॉजिटिव फीडबैक में गेन बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग और जल्दी वो सैचुरेट हो जाएगा. हम लोग माइक्रो वोल्ट देंगे, माइक्रो वोल्ट से भी कम वैल्यू में वो सैचुरेट हो जाएगा. सो इससे क्या होता है, बैंडविड्थ कम जाती है और ओवरऑल एम्पलीफिकेशन बढ़ जाती है. ओवरऑल एम्पलीफिकेशन बढ़ जाती है, ये याद रखना सब लोग. तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, गेन हमारा कम रहा है तो हम उसको और ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम लोग लीनियर रीजन में यूज़ कर पाएंगे. पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, गेन हमारा बढ़ रहा है, गेन हमारा बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा जल्दी सैचुरेट करेगा. इट विल सैचुरेट इन लेस फॉर लेस इनपुट वोल्टेज. सो अगर हमें सैचुरेशन के लिए यूज़ करना है तो हमें पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करेंगे, और अगर हमें यूज़ करना है नेगेटिव एम्पलीफिकेशन के लिए तो हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ करेंगे. अब देखो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, जो मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग मान लेंगे करंट जो है कुछ भी 0 है. इस केस में देख रहे हो तुम लोग 0, और मैंने बोला था जो V माइनस और V प्लस जो है वो दोनों सेम मानेंगे. जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सेम मानेंगे. तो इससे मतलब कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया नहीं, तो यहाँ पे इसको हम लोग वर्चुअल शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. और वो कैसे प्रूफ होगा देखो, मान लेते हैं यहाँ पे V आउट से कुछ फीडबैक भेजा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, V नॉट इंटू बीटा. V नॉट इंटू बीटा, ये सिर्फ एक गेन का जस्ट एक सिंबल दिया हुआ, ठीक है, गेन. यहाँ पे बीटा, यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई कर यहाँ पे बता रहा है कि V नॉट इंटू बीटा टाइम्स इधर आ जाएगा वोल्टेज. तो देखो V नॉट क्या हो जाएगा, A इंटू वी टू माइनस V1. जो हमारा एम्पलीफायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, V आउट इक्वल टू A इंटू डिफरेंस इन इनपुट वोल्टेज, राइट. ये इनपुट में याद रखना ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव होता है, ठीक है. सो अगर हम लोग V1 को देखा तो V1 क्या है, V नॉट इंटू बीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V2 माइनस बीटा V नॉट. यहाँ पे हम नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं, ठीक है. हाँ, सो A इंटू वी टू माइनस बीटा वी नॉट. सो हम लोग जब ये वी नॉट को इधर रिप्लेस करें तो वी नॉट इंटू 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ए वी टू हो जाएगा. तो वी नॉट इज इक्वल टू ए वी टू अपॉन 1 प्लस ए बीटा. तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ए का वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा. तो मान लो मैंने अभी बोला था 10:6 है. सो यहाँ पे अगर तुम सोचो 10:6 इंटू बीटा समथिंग, मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर 0.5 भी अगर हो गया, तो ये 1 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर होगा. तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर लिमिट लगाएंगे ए टेन टू इन्फिनिटी का, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ए का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो आ जाएगा. तुमने लिमिट पढ़ा होगा 12 में. तो यहाँ पे एज ए टेन टू इन्फिनिटी होने पर वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टू बाई बीटा हो जाएगा. ए कट जाएगा, वी टू बाई बीटा हो जाएगा. तो ना वी टू बोले तो वी टू कितना हो गया, बीटा वी नॉट हो गया. तो हमने देखा वी वन भी बीटा वी नॉट है और वी टू भी बीटा
V नॉट है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों वर्चुअली शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये दोनों का वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पे अभी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो तुम खाली ये मान लो फिलहाल के लिए कि जो हम लोग जब ओप एम्प का यूज करेंगे तो हम लोग दोनों टर्मिनल, अगर हम नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं या फिर कुछ भी फीडबैक यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों टर्मिनल में वोल्टेज हम लोग सेम अज्यूम करेंगे और करंट इंटरिंग थ्रू दिस टर्मिनल विल बी जीरो। ये दो कंडीशन हम लोग यूज करेंगे और हमें सारे मेमोरी जितने भी सर्किट ओप एम्प से आएंगे वो सारे सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक? देखो नेक्स्ट जाते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा, हम लोग जो इनपुट जब वो इन्वर्टिंग साइड में देंगे, आप पॉजिटिव टर्मिनल को जीरो कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को जीरो कर देंगे। तो यहाँ देखो क्या है, मैंने तुम्हें बोला था कि ये अगर ये ग्राउंड अगर कर दिया है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा, V प्लस क्या होगा, जीरो होगा, राइट। हेलो, मीटिंग में सब है कि बस जॉइनर के छोड़ दिया है? देखो अभी जो हो रहा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओपन वाला पोर्शन तुम लोग के काम आएगा, ठीक है, ओपन वाला पोर्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से इसको सुन लो, थोड़ा रिस्पॉन्स अगर कर सके तो अच्छा है। आगे देखो, here it is grounded, so V plus is equal to 0, so then V minus is also equal to 0, and no current will be going through this terminal, so we will assume that the current which is coming from the V in will be transferring through V out. Okay, the current which is coming through V in, it will travel through this path. Okay, so what I can write, V in minus 0 by R in, V in minus that is V minus is by R in is equal to V minus minus V out by RF, and you know V minus is equal to V plus is equal to 0, right? So in that case, V out will become minus RF by Rin into V. So whatever voltage you are giving as input voltage, it is multiplying it into minus and also with a amplifying factor. So यहाँ पे एम्पलीफिकेशन तो हो रहा है पर वोल्टेज जो है उसका आउट ऑफ फेज में चला जाएगा, मतलब अगर V अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा कि हम पॉजिटिव में वीन देंगे तो वो नॉन इन्वर्टिंग होगा, एम्पलीफायर कैसे होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वीन, यहाँ पे अगर वीन है तो यहाँ भी वीन होगा, राइट। और यहाँ मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल का ओप एम्प से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ जो भी करंट फ्लो होगा वो इस पाथ के थ्रू होगा, राइट, इस पाथ के थ्रू जो भी करंट फ्लो ना होगा। तो ये अगर वीन है तो यहाँ भी वी माइनस से वीन होगा, तो ये वाला वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, वीन हो जाएगा। तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे V minus by R1, V minus by R1, that is the current through this path, V minus by R1 is equal to what, V out minus V minus by R2, V out minus V minus by R2। अब V minus जो है वो V plus के बराबर है और V plus क्या है, V in के बराबर है। V minus V plus क्यों हो गया, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के कारण कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, तो पूरा करंट इस पाथ के थ्रू जाएगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ अगर हम लोग रिप्लेस कर दे V इन और V इन से, तो V out इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस R2 by R1 इंटू V। तो यहाँ पे देखो ये R2 का वैल्यू R1 से छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, इसलिए हमेशा इसको एम्पलीफाई ही करेगा। ओके, मतलब इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे V in और V out जो है उस दोनों फेज में रहेंगे, मतलब दोनों, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। नेक्स्ट हमें बोलेंगे सैमिंग एम्पलीफायर। तो इसमें देखो सिमिलर, ये अगर यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया तो हम इसको जीरो बोल देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। V प्लस अगर जीरो है तो V माइनस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें यहाँ से जितने भी करंट आएंगे, जितने भी ब्रांच है, वो सारे करंट कहाँ से होके गुजरेंगे, इस RF से होके गुजरेंगे। द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ दिस R1, R2, Rn will be transferred through this RF, okay, will be traveling through this RF value। सो अगर हम यहाँ पे नोडल इक्वेशन लिखे नेगेटिव पिन में, तुमने क्या लिखेंगे, V1 by R1 means current flowing through this terminal, V1 by R1 by, because it is 0, it is grounded, so it is also equal to 0, so V minus is also equal to 0, so V1 by R1 plus V2 by R2 plus dot 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 Vn by Rn is equal to minus V out, minus V out, 0 minus V out is equal to minus V out by Rn। अगर हम लोग सारे रेजिस्टर वैल्यू सेम ले लें तो ये RF, R1, R2, Rin सब कट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, V out इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। यहाँ पे क्या होगी, सारे वोल्टेज को ये सम कर दिया इसने, क्या कर दिया, सारे वोल्टेज को इसने
सम कर दिया। ये हो गया लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे देखो ये चीज हमेशा याद रखना, हम लोग जितना भी एम्पलीफायर यूज करेंगे हम सब लोग नेगेटिव फीडबैक का यूज करेंगे। कौन सा फीडबैक का यूज करेंगे? नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या क्या, इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो जो वैल्यू के वी इन उसका एल एन यहाँ पे निकलेगा, जो हम यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा देखो, so it is ground, v plus is grounded, so we will take v minus is equal to v plus is equal to 0. So whatever current is coming through this vn will be traveling through this diode and will come through v out. Okay, so we can write this is diode equation. Okay, id is equal to I naught e raised to vd by vt, where vd is the voltage difference between the positive and negative terminal, vt is the thermal voltage, and it is equal to kT by q, where k is Boltzmann constant, T is the absolute temperature, and Q is the charge. Q is the electronic charge. Okay, 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. So here Vd is equal to what? 0 minus V out. So Vd is equal to minus of V naught. We are just representing V out by V naught. And Id is equal to what? The current flowing through this diode will be V in minus 0 by R. Okay, so V in minus 0 by R is equal to V in by R. तो यहाँ पे जो करंट जो इस पाथ से जो करंट फ्लो हो रहा है वी इन आर से, तो वो कितना होगा? वी इन माइनस 0 बाई आर, दैट इज वी इन बाई आर। और जो डायोड से जो करंट फ्लो होता है उसका हमने इक्वेशन क्या सीखा? आई डी इक्वल टू आई नॉट वी डी बाई वी टी, ई रेस टू वी डी बाई वी टी। तो वी डी का वैल्यू जो है माइनस वी नॉट से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे आई नॉट ई रेस टू माइनस वी नॉट बाई वी टी इक्वल टू वी इन बाई आर। हम लोग जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे वी आउट के लिए, तो हमें क्या निकलेगा? माइनस वी टी एल एन वी इन बाई आई नॉट आर। तो क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल में हमने अप्लाई किया तो वो नेगेटिव तो करेगा ही उसको। अब बाकी इसको क्या करेगा, यहाँ पे वी इन का एल एन ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक निकालेगा। सो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल मान लो कुछ एल्जेब्रिक हमें कुछ सॉल्व करने दिया, जैसे ए प्लस बी प्लस एल एन सी अगर कुछ दे दिया गया है, तो हमें जो ये जो तो इस अब यूज कब कर सकते हैं हम लोग? मान लो हमें समेशन करना, तो हम लोग जो समिंग एम्पलीफायर उसका यूज कर सकते हैं। हमें किसी सिग्नल का एल एन वैल्यू निकालना है, तो हमें उसके लिए हमें ये सर्किट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ओपेम का यूज कर सकते हैं। एल्जेब्राइक जो एक्सप्रेशन जो रहता है उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओपेम का यही खासियत है कि हम लोग यहाँ पे इसके द्वारा अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, हम लोग एक सेकेंड 2 मिनट हो गए, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज में लगाना। हेलो, एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बस। ठीक है, तो रिज्यूम करता हूँ मैं। सो मैं जो यहाँ बोल रहा था, सो दिस इज डिफरेंशिएटर सर्किट। लॉगरिथमिक एम्पलीफायर सबको समझ में आ गया ना? सभी डिफरेंशिएटर सर्किट की बात करते हैं, या फिर डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, हम लोग जानते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पे जो इसका अक्रॉस चार्ज होगा क्या होगा? C इंटू V होगा। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, द V प्लस इज पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड, सो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस इज इक्वल टू व्हाट? 0। सो द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट? V इन, V इन माइनस 0 इज इक्वल टू V इन। So we will write Q is equal to CV and I is equal to what? dQ by dt.
So Q is equal to CB. So DQ is equal to C dV because C is constant. So हम लिख सकते हैं I is equal to C dV in by dt, क्योंकि यहाँ पे V क्या है, देखो इसके अगर जो वोल्टेज है वो क्या होगा, V in माइनस 0 होगा, दैट इज V in हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे जो करंट जो भी जाएगी तो वो करंट इस पाथ से होते हुए बाहर चली जाएगी, तो हम क्या ले सकते हैं 0 माइनस वी आउट बाई आर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हो I is equal to माइनस वी आउट बाई आर। अगर हम वी आउट इन दोनों को इक्वेट करेंगे अगर हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर सी डी वी इन बाई डी टी। तो ये डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर है, ठीक है, तो एम्पलीफाई भी कर रहा है और साथ साथ डिफरेंशिएट भी कर रहा है। देखो ये सर एम्पलीफायर के एप्लीकेशन है, ठीक है, इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया, समिंग हो गया, लॉगरिथमिक हो गया और डिफरेंशिएटर हो गया। तो हम कुछ न्यूमेरिकल सब सॉल्व करके देखते हैं। सो ये न्यूमेरिकल सबको दिख रहा है, राइट? सेकेंड ईयर से कोई रिप्लाई करो एटलीस्ट, कोई भी। ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है? तो ये क्वेश्चन अगर मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, बस 3-4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना बस। देखो यहाँ मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे कोई वी आउटपुट बोल पाएगा जिसने पहले से पढ़ रखा हो पे, या फिर अभी जो मैंने पढ़ा है उससे कोई बोल पाए वी आउटपुट क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने 1 वोल्ट दिया है, किसको, नेगेटिव टर्मिनल को भी दिया है और पॉजिटिव को भी 1 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो देखो दो चीज हमें याद रखना है कि V माइनस से और V प्लस टर्मिनल, V माइनस टर्मिनल से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इस टर्मिनल में कोई भी करंट नहीं जाएगा और इस टर्मिनल में कोई करंट नहीं जाएगा। और जो वोल्टेज होगा दोनों में सेम होगा, वोल्टेज दोनों में सेम होगा। तो अगर हम इस तरह यहाँ बात करेंगे 1 वोल्ट जो है ये कहाँ से होकर गुजर रहा है, लेट मी शेयर। देखो तो हम लोग इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं, ये भी 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट है। ये सॉल्यूशन सबको दिख रहा है ना? सेकेंड ईयर से कोई बोलो, आदित्य कुमार, आदित्य, मयंक, अंकुर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बस देखो हम लोग ये सॉल्यूशन दिख रहा है? हाँ विजिबल है। हाँ तो देखो हम लोगों ने क्या किया, 1 वोल्ट को हमने सेपरेट कर दिया कि मान लो यहाँ पे 1 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ था, तुमने 1 वोल्ट ऐसे मान लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से जो करंट फ्लो यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव में कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव में कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो जो भी करंट जाएगी उस इस ग्राउंड में चली जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन हमने देखा था, तो देखो यहाँ से इसको हमने जस्ट सेपरेट कर दिया 1 वोल्ट, दोनों पे वोल्टेज सेम से अलग अलग लिख ही सकते हैं। यहाँ से हमने क्या बोला कि मान लो यहाँ से जो भी करंट जाएगी वो इस तरह से ग्राउंड में चली जाएगी। तो अगर ग्राउंड में चली जाएगी, यहाँ पे दोनों का वैल्यू का रजिस्टर का वैल्यू सेम है, बोथ रजिस्टर्स आर हैविंग सेम वैल्यूज, ओके। तो हम लोग अगर रजिस्टर वैल्यू अगर सेम है तो मैं क्या बोल पाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 0.5 वोल्ट होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मिडिल में कितना होगा, 0.5 होगा ना। ये तो वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट है सिंपल, 1 किलो 1 किलो। यहाँ पे कितना होगा, 0.5 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पे 0.5 वोल्ट दैट इज V प्लस में अगर 0.5 वोल्ट है तो V माइनस से भी 0.5 वोल्ट होगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पे तो सिंपल नोडल एनालिसिस लगा देंगे, 1 माइनस 0.5 बाई 1 किलो ओम दैट इज अ रजिस्टर हियर इज इक्वल टू 0.5 माइनस V नॉट बाई 2 किलो ओम। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी वो इस पाथ से होकर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे 1 किलो ओम 2 किलो ओम कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 को इधर तुम लोग भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस V नॉट। आप V नॉट के यहाँ सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.5 आ जाएगा, माइनस 0.5। ये सर्किट ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया, ये न्यूमेरिकल? चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लो अच्छे से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने V प्लस इज ग्राउंडेड एंड वी आर गिविंग अ नेगेटिव फीडबैक, रिमेंबर यहाँ पे हमने नेगेटिव फीडबैक दिया है।
और हमने यहाँ पे करेक्शन दिया है, नेगेटिव में ही टर्मिनल में करेक्शन दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ग्राउंडेड है तो v प्लस इज इक्वल टू 0 के v दिस इज प्लस साइन, तो v प्लस इज इक्वल टू 0 देन v नेगेटिव आल्सो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। देखो यहाँ से जो भी करंट यहाँ से आ रही होगी वो इस तरफ से करंट कोई जाएगी नहीं, नो करंट विल फ्लो थ्रू द नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, so the whole current will travel through this path. Okay, so we can write v in minus 0 by r1, vi minus 0 by r1, where vi is equal to v in equal to 0 minus v naught. V naught is this is short circuit, right? So ये v naught यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 minus v naught by r2. so यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये r2 दिया हुआ है, ठीक है, r2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम v naught निकाले तो क्या हो जाएगा, v naught is equal to minus r2 by r1 into vi। so कोई भी अगर ओपन में क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो दो चीज बेसिक याद रखना, करंट जो फ्लो होगा नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से वो 0 होगा, और जो दोनों का वोल्टेज होगा सेम होगा, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, याद रखना नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे v1 sin ओमेगा t दिया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, पैरेलल में ऐसे लगा दिया गया है, और यहाँ पे कैपेसिटर है, नेगेटिव फीडबैक है यूजिंग कैपेसिटर। अब अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल मेथड से जाएं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे हमें करंट निकालने क्या करना पड़ेगा, करंट इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी, तो डी सी वी वन साइन ओमेगा टी बाई डी टी हो जाएगा, राइट। सो हमें डिफरेंशिएशन डिफरेंस Sachin, you are not audible. हेलो, अभी तेरी आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी देर पहले। हाँ वो फिर से पासवर्ड मांगा था, ठीक है, अभी आ रही है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो बस 2 क्वेश्चन बचा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो यहाँ पे हमने v1 sin ओमेगा टी या v2 sin ओमेगा टी हमें ए जोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और सी को अगर हम कन्वर्ट करने जाए तो हम क्या जानते हैं, हम लोग सी को क्या हो जाता है 1/cs हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल में मान लेते हैं ये अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज है तो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये सी जो है 1/cs से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखें तो v प्लस क्या होगा, 0 होगा, v प्लस क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे v प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो v माइनस भी क्या होगा 0 होगा। तो जो भी करंट इस इन दोनों पाथ से आ रही होगी वो दोनों सम होके इस पाथ से होकर गुजरेगी। तो मैं क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लो v1 ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 1/sc, तो ये sc ऊपर आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसके यहाँ इस सोर्स से जो करंट आ रहा होगा v2 ओमेगा बाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 1/sc, तो ये इससे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 माइनस वी नॉट इंटू एस सी, 0 माइनस वी नॉट इंटू एस सी। देखो ये एस सी 1/sc डिवाइड करेंगे तो वो एस सी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो देखो ये एस सी यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ v1 प्लस v2 ओमेगा बाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सिंपली v1 प्लस v2 साइन ओमेगा टी, राइट। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा माइनस v1 प्लस v2 साइन ओमेगा टी। अभी जितने बाकी जो ये सिंपली ये इस देखो v1 साइन ओमेगा टी ये बन गया, ठीक है, v1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे जो कांस्टेंट ये सिर्फ ये यहाँ पे चेंज हो गया, बस माइनस साइन आया, तो सिंपली इसको हम लोग टाइम में क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो बस हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज किया और इसे सॉल्व कर लिया। तो यही लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यही खासियत है, ठीक है।
तो ये भी एक सर्किट है। तो ये सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा है, ठीक है, पर अगर तुम लोग बेसिक चीज याद रखोगे तो ये सर्किट भी सॉल्व करना काफी आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेन चीज क्या है, ये 1 वोल्ट है, यहाँ से अगर करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे अगर 1 वोल्ट रहेगा तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे अगर 1 वोल्ट रहेगा तो यहाँ भी 1 वोल्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इस पास से जो करंट फ्लो होगा उसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये V डैश है, ठीक है, यहाँ पे -2 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो रहेगी उससे क्या, इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो रहेगी, देखो ये जो एरो दिया मैंने, इस डायरेक्शन क्या करंट फ्लो होगी, 1 माइनस -2 डिवाइड बाय 1 किलो, दैट इज 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो इस तरह से पूरी जाएगी, तो ये क्या ले सकते हैं, V1 डैश -1, दैट इज क्योंकि यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो अगर हम V बाई जो इक्वेशन लगाएंगे, करंट इज इक्वल टू व्हाट, V बाई R, तो V डैश -1 बाई 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 1, ये इसको सॉल्व करने क्या आएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे देख लेना, ये 1 किलो ओम होगा, यहाँ पे 3 मिली होगा, तो यहाँ पे -10⁻³ 10⁻+3 कट जाएगा, ठीक है, तो V जो है सिंपली 4 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। अब देखो ये सिंपल क्या है, नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है यहाँ पे, ये 4 वोल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। और जो भी करंट है वो इस पाथ से भी गुजरेगा, इस पाथ से कोई भी करंट नहीं जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर तो यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो जो करंट है, करंट यहाँ पे ड्रॉप कितना रहा है, 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। और ये यहाँ पे रजिस्टर अगर सेम है तो यहाँ भी 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ गए तो 4 वोल्ट हो गया, 0 से 4 हो गया, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, 4 से 8 वोल्ट हो जाएगा। तो तुम लोग इक्वेशन भी लगा सकते हो, वी आउट -4/1 इज इक्वल टू 4 - 0/1, तो वहाँ से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, वी नॉट कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो। देखो यहाँ भी हम हमारे पास क्या है, हमारे पास रजिस्टर है, इंडक्टर है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैस्केडिंग यूज किया, मैंने ये पहला अपर में, फिर उसका आउटपुट को हमने दूसरा अपर में मैंने फीड कर दिया, और दोनों में नेगेटिव फीडबैक का यूज किया। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपली जैसे हमने कैपेसिटर में किया था, हम रजिस्टर और रजिस्टर तो सेम ही रहेगा, हम इसको लिखेंगे R1, इसको लिखेंगे L1, L1 को क्या लिख सकते हेलो हैं, सचिन, LS। हाँ अभी तो स्लाइड नंबर 17 पे है क्या? नहीं, अब ये लास्ट स्लाइड है, खत्म। नहीं, अभी भी स्क्रीन पे 17 ही आ रहा है। शेयरिंग एक बार बंद करके स्टार्ट कर दे। अच्छा अब दिख रहा है स्लाइड नंबर हाँ 19। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो ओपन एम्पलीफायर जो है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैस्केडिंग का कैस्केड कर दिया गया, मैंने एक के बाद एक लगा दिया गया। यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर है, रजिस्टर है, सॉरी। तो हमें निकालना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसमें अगर हम लोग नॉर्मल करंट इक्वेशन लगाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे LdI/dt का यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसको एज डोमेन में बदल लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग एज डोमेन में सर्किट को बदल देंगे। तो मैं क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे R, इसको लिखेंगे SL, इसको भी लिखेंगे SL, इसको क्या लिखेंगे 1/SC, क्योंकि कैपेसिटर है, राइट, इसको 1/SC लिखेंगे, इसको ये R2 हो गया। तो हम लोग V01 क्या लिख सकते हैं, V01 देखो ये सिंपल सा सर्किट बन जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 होगा। तो जब मैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो फॉर्मूला सीखा था, -R2/R1 इंटू Vin, ठीक है, लिखेंगे V01, दैट इज द आउटपुट ऑफ आफ्टर दिस एम्पलीफायर, आउटपुट आफ्टर दिस एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, -LS/R1 इंटू VS। सिमिलरली अगर हम इस एम्पलीफायर को देखें तो यहाँ पे इनपुट कितना है, V01 है, आउटपुट है V02 मान लेते हैं, तो V02 इज इक्वल टू -1/SCR2, क्योंकि हम यहाँ पे R2, ये जो Z है और ये जो R है, यहाँ पे -R2/R1 करेंगे, यहाँ पे R की जगह क्या होगा, यहाँ पे Z हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/SC डिवाइड बाई R2, तो ये हो जाएगा इंटू V01। तो अगर हम V01 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो SS कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा L/C R1 R2, यहाँ पे होल में VS हो जाएगा। तो ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसमें एस तो नहीं है क्योंकि एल भी कुछ कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, R1 R2 सब कांस्टेंट है। तो इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये कांस्टेंट, इससे कुछ चेंज नहीं होगा, मैंने वी आउट जो हो जाएगा वो इक्वल टू L/C R1 R2 VSC रहेगा। तो इसका तो ये कितना है, तो यहाँ पे अगर हम एल का वैल्यू पुट कर दें तो कितना है, 10 मिली हेनरी है, सी कितना है 10 माइक्रोफेराड है, एक सेकेंड, R1 R2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10:3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो वो हो जाएगा 10:3।
से यहाँ पे 10⁻³ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे v इन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती है ये वाला, अगर हम 10 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻³ है, 10⁻3 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वी आउट जो है वो वी इन के बराबर हो जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर हम यूज़ करेंगे तो सर्किट को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन में अपन भी यूज़ कर लिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर लिया। तो हमने तो इससे यहाँ पे खाली ये गलती है, 10 नहीं होगा 1 होगा यहाँ, क्योंकि हम 10⁻³ हो जाएगा 10 मिली। बस इतना ही था आज के लिए। किसी कोई डाउट? ये जो क्वेश्चन है जो खुद से सॉल्व करना, ठीक है, सब लोग ट्राई करने से खुद से सॉल्व कर सको, एक बार इन चीज़ों को देख लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये सब, एक बार खाली ग्रो थ्रू करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई भी किसी को डाउट हो।